Hello guys, this is Anu Sharma here. Welcome to my YouTube channel Pharmacy Learnings with Anu Sharma. Now we are going to study pharmaceutical industry basic question and answers. Being a fresher or a student or a part of pharmaceutical industry, it is very important to elaborate our knowledge in every department of pharmaceutical industry, and to elaborate our knowledge to a good range we should start it with a basic. We should clear the basic concepts of every topic before being an expert in pharmaceutical industry. So it's a try to be a best candidate in pharmaceutical field, and hope you all will listen all the answers and questions basics about pharmaceutical industry and follow it in your daily routine when you were acting as an fresher or an intern trainee or an employee. So let's start pharmaceutical industry basic question and answers. Before that, like, share and subscribe my channel and keep watching and supporting me. So let's start. So first question: what is the difference between intermediate and drug substance, or we can say API, active pharmaceutical ingredient? So its answer. First of all, I will explain you what is intermediate. A material produced during steps of the processing of an API that undergoes further molecular change or purification before it became an API. एक ऐसा मटेरियल जो कि प्रोसेसिंग के दौरान चलता है, ठीक है ना, जब भी एक एपीआई बनना होता है, और उस मटेरियल में जब हम मॉलिक्यूलर चेंजेस करते हैं और उसको हम प्यूरिफाई करते हैं, तो जो इंटरमीडिएट सब्सटेंस होता है, जो प्रोसेस के दौरान का सब्सटेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट. क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट. तो एपीआई से बनने से पहले जो हमारे पास मटेरियल होता है, हम उसे क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट. ओके, रेफरेंस लिया गया है ICH-Q7A गाइडलाइन का. Next is, what is API? Active pharmaceutical ingredient. Any substance or mixture of substances intended to be used in the manufacturing of a drug or medicinal product, and that when used in the production of a drug becomes an API of the drug product. Such substances are intended to furnish pharmacological activity or other direct effect in the diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of disease, or to affect the structure and function of the body. कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं हम, या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस जिन्हें कि हम दवाई बनाने के लिए यूज़ करते हैं. ओके, और जब हम उन्हें प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो फिर वो क्या बन जाती है? एक मेडिसिन बन जाती है या एपीआई बन जाता है. ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी में जो अनइंटेंडेड और अनवांटेड डिसीज़ वाली एक्टिविटी चल रही है, उसको क्योर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. ओके, डायग्नोस करने के लिए उस डिसीज़ को यूज़ किए जाते हैं, या रोकने के लिए उस डिसीज़ को यूज़ किए जाते हैं, एज वेल एज़ वो हमारे बॉडी फंक्शंस को ऑल्टर करते हैं, एंड जो नॉर्मल नहीं है बॉडी ऑर्गन, उसको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करते हैं. ऐसे सब्सटेंस को हम एपीआई कहते हैं. एक ड्रग में एक्सिपिएंट्स के अलावा, जितने भी एक्सिपिएंट्स होते हैं उसके अलावा जो मटेरियल प्रेजेंट होता है, दैट इज़ नोन एज एपीआई. सिंपल वर्ड्स में, एक ड्रग में एक्सिपिएंट्स मतलब जो भी हम बाइंडर्स यूज़ करते हैं, ओके, या फिर लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं, उसके अलावा जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है, उसको वो जो होता है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ड्रग का, जिससे कि हमें हमारी बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी देखने मिलती है. सो दिस इज़ एपीआई. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. So the second question is, what is the difference between drug substance and drug product? Okay, any substance or mixture of substances intended to be used in the manufacture of a drug, that is medicinal product, and that when used in the production of a drug becomes an active ingredient of the drug product. Such substances are intended to furnish pharmacological activity or other direct effect in the diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of diseases, or to affect the structure and function of the body. Reference is taken from ICH-Q7A guideline.
सो ड्रग सब्सटेंस क्या होता है? कोई ऐसा सब्सटेंस या फिर हम कह सकते हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस जिनका यूज़ किया जाता है एक ड्रग को बनाने के लिए, और जब इसका यूज़ किया जाता है तो फिर एक ऐसी एंटाइटिटी, एक ऐसी थिंग को प्रोड्यूस करती है जो कि हमारी बॉडी की ऑल्टर्ड चेंज जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को ठीक करने का काम करती है, ओके, और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को उस पार्टिकुलर ऑर्गन के नॉर्मल करती है, राइट। और ड्रग प्रोडक्ट क्या होता है? द डोजेज फॉर्म इन द फाइनल इमीडिएट पैकेजिंग इंटेंडेड फॉर मार्केटिंग, ओके। डोजेज फॉर्म क्या होता है? जब हमारे पास जो फाइनल ड्रग प्रोडक्ट बन जाता है और सिर्फ पैकिंग करनी होती है उसकी, तो जो पैकेजिंग से पहले का प्रोडक्ट होता है फाइनलाइज, दैट इज नोन एज ड्रग प्रोडक्ट, that is known as drug product, and reference is taken from ICH Q7A guideline, okay. So next question. So third question, what is the definition of SOP? Standard operating procedures. So let's go towards the definition. Standard operating procedures, that is SOPs, are detailed written instructions for the operations routinely performed in the course of any activity associated with pharmaceutical manufacturing. जो SOPs होते हैं वो रिटन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ओके, निर्देश होते हैं किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ओके, जो कि डील करती है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ, ओके। सिंपल भाषा में अगर हम कोई भी मशीन ऑपरेट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, या फिर हम कोई भी टेस्टिंग कर रहे हैं, टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो या सैम्पल हैंडलिंग कर रहे हैं, या कैलिब्रेशन कर रहे हैं, वैलिडेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है, एक सेट ऑफ रिटन स्टेप्स होते हैं या रिटन इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको हम एसओपीज कहते हैं, ओके। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन है रिटन ऑथराइज्ड प्रोसीजर विच गिव्स इंस्ट्रक्शंस फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस नॉट नेसेसरीली स्पेसिफिक टू अ गिवन प्रोडक्ट और मटेरियल बट ऑफ ए मोर जनरल नेचर, द इक्विपमेंट्स प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग, रिकॉल ऑफ प्रोडक्ट्स, परचेजिंग, क्लीनिंग ऑफ प्रेमिसेस एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल, सैम्पलिंग, इंस्पेक्शन एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक रिटन ऑथराइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, रूल्स का, स्टेप वाइज का, एक पार्टिकुलर मटेरियल या एक पार्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए नहीं, लेकिन एक वाइड एरिया ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स के लिए होता है। या फिर कोई प्रोडक्ट वापस आया है तो उसको कैसे हैंडल करना है, रिकॉल ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके, तो उसके लिए क्या रूल्स हैं, स्टेप्स हैं, क्लीनिंग के लिए क्या रूल्स हैं, स्टेप्स हैं, परचेजिंग के लिए क्या रूल्स हैं, स्टेप्स हैं, सिंपल लैंग्वेज में क्लीनिंग के लिए प्रेमिसेस की क्या स्टेप्स हैं या रूल्स हैं, इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमिडिटी कितने टेम्परेचर में मेंटेन होनी चाहिए, राइट, या फिर कितने पीएच पे टेस्टिंग होनी चाहिए, ये सब के स्टेप्स एंड रूल्स होते हैं एक ऑथोरेटिव डॉक्यूमेंट में, रिटर्न फॉर्म में, दैट इज़ नोन एज एसओपी। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन है हमारे पास, ओके, these are the guidelines which describe how the activities to be performed, कैसे किसी एक्टिविटी को हमें परफॉर्म करना है। ये गाइडलाइंस होती हैं जो कि बताती हैं कि किसी भी एक्टिविटी को हमें कैसे परफॉर्म करना है ताकि यूनिफॉर्मिटी आए रिजल्ट्स में, वेरिएशन ना आए रिजल्ट्स में, सेम रिजल्ट्स आए हर एक इंडिविजुअल के थ्रू। जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल आंध्र प्रदेश में वो ही सेम टेस्टिंग कर रहा है किसी प्रोडक्ट की, या कोई एक पर्सन गुजरात में कर रहा है सेम प्रोडक्ट की टेस्टिंग, तो रिजल्ट सेम आने चाहिए। थोड़ा बहुत प्रिसीजन या एक्यूरेसी में डिफरेंस होगा ड्यू टू ह्यूमन एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर, बट एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो सेट होती है हमारे पास, आईपी, इंडिया में आईपी फॉलो करते हैं, या ठीक है ना, या फिर यूएसपी या बीपी के थ्रू, तो वो वैल्यूज़ कांस्टेंट होनी चाहिए, तो उसके लिए एसओपीज़ बनाई जाती हैं और इसलिए फॉलो भी की जाती है। दूसरे तरीके से हम एसओपी को कह सकते हैं, इट्स लाइक अ टेल एंड शो कॉन्सेप्ट, टेल एंड शो कॉन्सेप्ट। अब व्हाट डू यू मीन बाय टेल हियर एंड व्हाट डू यू मीन बाय शो हियर? टेल का मतलब है यहाँ पे मीन्स टू एस्टेब्लिश एंड टीच हाउ द एक्टिविटीज़ टू बी कैरिड आउट, कैसे हमें किसी भी एक्टिविटी को करना है, ओके, एक तरीका है ये बताने का कि हमें किसी भी एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है। शो यहाँ पे क्या मतलब है, शो का क्या मतलब है यहाँ पे, मीन्स टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंटेड प्रूफ फॉर द एक्टिविटी कैरिड आउट, जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म कर दी है उसका प्रूफ क्या है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में उसका प्रूफ दिखाना, दैट इज शो हियर, ओके। सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द एसओपी? एसओपी के क्या कंटेंट्स होते हैं? हम उसको लिखते तो हैं, लेकिन किस वे में लिखना चाहिए और क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए उसमें? ऑब्जेक्टिव या पर्पस, सेकेंड इज स्कोप, थर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोर्थ इज अकाउंटेबिलिटी, फिफ्थ इज प्रोसीजर,
Sixth is list of formats or annexure. Seventh is abbreviations. Eighth is reference. Ninth is revision. एंड 10th इज़ हिस्ट्री. ओके, सो दीज आर द कंटेंट्स. ये सब चीज़ें हमारी एसओपी में होनी चाहिए जब भी हम हमारी एसओपी फॉर्मुलेट करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंफॉर्मेशन शुड बी मास्टर डॉक्यूमेंट कैरी on every page, not just one of the pages to meet GMP. मास्टर डॉक्यूमेंट सारी इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, लेकिन सिर्फ एक पेज में ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं कंटेन करता है मीट करने के लिए गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को. तो वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है? पेज नंबर, डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर एंड ऑथराइज्ड सिग्नेचर्स. ओके, इसका आंसर क्या है? पेज नंबर, डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर एंड ऑथराइजिंग सिग्नेचर्स. ओके, सो हम ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस आगे वाले पार्ट्स में भी देखते रहेंगे. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल to see such an interesting content to enhance your knowledge about pharmaceutical industry. Thank you. Like, share and subscribe.